Now I'm taking a session with Dr. Narendra Gupta, and the topic is really very vibrant because he's going to speak on virtual labs. See, and we are in a pandemic right now, and we can think that after say 1 month or 2 months or 3 months, we will think about the practicals of our students also. So see, it is very relevant and very appropriate to talk about the virtual labs here. Now, without wasting any time, I will request Dr. Narendra Gupta with a small introduction before his deliberation. Narendra Gupta has a doctorate in geography from University of Rajasthan. He is having a 10 years of teaching and research experience and currently working as assistant professor in geography at Maharana Pratap Government College, Chittorgarh. He has also been a member of various geography associations, contributing papers on geomorphology, water resources, and urban geography for their various seminars and conferences. He has published more than 13 research papers in various journals of national and international repute. He has also authored one book. I'm very happy to call such a young and dynamic geographer here. Board is yours. Dear all, good afternoon. First of all, I would thankful to Team Seeker and Director College Education Rajasthan to organize such a beautiful FDP in this pandemic situation. It is really a wonderful opportunity for me to interact with you all. Friends, geography is a subject of innovations. ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ साइंस, ऐसा हम पढ़ते आ रहे हैं. वी हैव लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटी एज ए टीचर इन द ज्योग्राफी. आई वुड also deliberate thanks to all for prepare such a wonderful e-content during this pandemic situation for college education. Let me share the presentation in front of you with the topic virtual lab, an introduction and teacher's perspective. Dear friends, virtual lab का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा हमारे लिए नया है. इस टॉपिक को दो चीजों के साथ हम यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं. एक है इंट्रोडक्शन पार्ट एंड सेकंड वन इज टीचर्स पर्सपेक्टिव. शिक्षक के रूप में, शिक्षक परिप्रेक्ष्य में हम वर्चुअल लैब की अपॉर्चुनिटी को कैसे ले सकते हैं. तो लेट मी डिफाइन द डेफिनेशन. वर्चुअल लैबोरेटरी सिमुलेशन इज ए लर्निंग एक्सपीरियंस split to authentic laboratory. Virtual lab allow student to complete laboratory experiments online and explore concepts and theories without stepping into a physical lab. सामान्य भाषा में यदि हम बात करें तो वर्चुअल लैब का मीन्स है इट इज नॉट रियल बट इक्वल टू रियल. यथार्थ जैसा, सामने सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे सामने ही हो रहा है, वास्तविकता के अनुरूप. कंप्यूटर या किसी मॉडल की सहायता से हम किसी लैब एक्सरसाइज को स्टूडेंट्स के लिए प्रेजेंट करें. डियर फ्रेंड्स, जैसे एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो वर्चुअल एनवायरनमेंट में पहले रहते हैं. आपने पबजी जैसे गेम्स के बारे में भी पढ़ा है और देखा भी है कि किस तरीके से एक वर्चुअल एनवायरनमेंट हमको रियलिस्टिक लगने लगता है. तो फिर प्रैक्टिकल्स क्यों नहीं? दैट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल लैब. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्चुअल लैब. वन इज सिंपल वीडियो एनिमेशंस एंड सेकंड वन इज 3D इंटरैक्टिव वीडियो एनिमेशंस. इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यू हैव टेस्ट योर आइडिया विथ ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स इन 3D एनवायरनमेंट. नटशेल में मैं एक वाक्य कहना चाहूंगा, एक बात कि विथ वर्चुअल रियलिटी द वर्ल्ड इज इन योर क्लासरूम. ये महत्वपूर्ण बात है. इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर हम अचानक वन वे क्लासरूम से निकलकर डिजिटल फ्रंटियर पर आ गए और देयर आर लॉट ऑफ स्कोप्स एंड रेंज ऑफ पब्लिक लर्निंग फैसिलिटीज इन फ्रंट ऑफ अस. विद द हेल्प ऑफ आवर विजडम एंड विजन, not only students, even common people can team up in a unique way to understand the new scientific advancement.
डिजिटल एज में जो इंस्पिरेशन हमें वर्चुअल लैब के लिए मिली है, 2014 में MHRD ने सबसे पहले वर्चुअल लैब IITs NITs में प्रारंभ की, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देयर आर 4 ऑब्जेक्टिव्स जो वर्चुअल लैब के लिए हमें प्रेरित करता है। नंबर 1 इज टू प्रोवाइड रिमोट access to labs in various discipline of science, earth science. Virtual lab would cater the student not only in graduate level but also postgraduate level as well as research scholars. Second important thing is कि learning base है वो depend करता है, depend on the curiosity. यहाँ पर as the student pays, he is able to learn by self with the remote experiments. Third one is to provide a complete learning management system. Complete learning management system means you have to provide web resources for the students, your video lectures, you have to provide animated demonstrations, and also you are able to self-evaluate the student pre-lab exercise, पोस्ट लैब एक्सरसाइज एंड बाय क्विज। इंपॉर्टेंट थिंग एक और है हमारे साथ कि सभी लैब्स हमारे पास जो हैं, फॉर एग्जांपल हमारे हायर एजुकेशन को हम राजस्थान में ले सकते हैं कि कुछ लैब्स हैं वो रिच हैं, GIS एंड रिमोट सेंसिंग लैब्स की अभी डॉक्टर भाकर ने बात की। सभी कॉलेजेस के पास फैसिलिटीज नहीं है, तो वी हैव टू शेयर कॉस्टली इक्विपमेंट और रिसोर्सेज विथ रिमोटली सिचुएटेड एरिया। So there is no bar of time and geographical distance during use of the virtual lab. So there are 4 words: curiosity, remote access, on pace, and learning management system is the objective of the virtual lab. Few more things is the philosophy. Virtual laboratory use technology to enhance the learning experience. 1. Supplement of the real laboratories for education, use picture, animations and interactive simulations, free choice learning. No restriction on the education level, age and time for the user, and platform for exchange of the information. Means explore the content beyond the syllabus is the main motto of the virtual lab. So that's why we have to motivate the virtual laboratories in the field of practical subjects. There are 3 main motive. One is multiplication of the quality lab. Second one is sharing of the costly equipments. And third one is the physical distance limit during experiments. Rich learning experience हमें इससे मिलेगा. Allow pause and restart for reflection. क्योंकि हर स्टूडेंट का समझने का जो तरीका है या पेस है वो अलग अलग हो सकता है, तो लर्नर स्पेस फॉर लर्निंग इसका मेन मोटो है। एडिशनल रिसोर्सेज लाइक थ्योरी, एनिमेशंस, नोट्स, क्विज, लिंक्स, वीडियोस, ये सब हम इसके साथ शेयर कर सकते हैं। तो द बेसिक आइडिया कम फ्रॉम देयर इज अ फिजिकल लैब, GCA अजमेर का एक फोटो है ये, लोकेटेड रिमोटली पूरे राजस्थान के कॉलेजेस से। बट इफ GCA अजमेर प्रोवाइड ए वर्चुअल लैब फैसिलिटी थ्रू इंटरनेट, यूजर जो कि रिमोटली 1 है, रिमोट 1, रिमोट 2 यूजर और रिमोट n यूजर्स इसका यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जनरली जब हम ई कंटेंट और वर्चुअल लैब की बात करते हैं तो बात आती है कि हमारी टीचिंग को, जो हम फेस टू फेस टीचिंग दे रहे हैं, उसको वर्चुअल लैब उसका सप्लीमेंट नहीं हो सकता है। मैंने यहाँ एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने की कोशिश की है। आप देखिए, कॉस्ट के साथ टिपिकली फिजिकल लैब बनाने के लिए हमें लाखों रुपए की आवश्यकता होती है, वहीं वर्चुअल लैब है उसमें केवल आपका PC एंड इंटरनेट इसकी जरूरत है। हमारे पास स्ट्रेंथ इतनी है, मास इतना है कॉलेजेस के अंदर स्ट्रेंथ, कि हमारे पास टाइम और स्पेस उनके लिए नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं है। बट इन केस ऑफ वर्चुअल लैब 24/7 यूजेस है, लिमिटेड ऑप्शंस फॉर इनोवेशंस। बट इन केस ऑफ वर्चुअल लैब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं। नो डाउट यूजर एक्सपीरियंस इन द फिजिकल लैब इज बेस्ट, बट
सभी यदि सिचुएशंस को हम कंसीडर करें तो द सेकंड बेस्ट इज वर्चुअल लैब। फैकल्टी हमारे पास कॉलेजेस में लिमिटेड है, बट इन केस ऑफ वर्चुअल लैब इट इज अनलिमिटेड। कई बार बात आती है कि वर्चुअल लैब में वन वे हम चीजों को बात करते हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि वर्चुअल लैब ऑल्सो हैव ए फिक्स टाइम। मेंटर्स इंटरेक्ट विथ रिमोट स्टूडेंट टू हेल्प देम बाय द लाइव चैट, ब्लॉग्स और ईमेल्स। तो टू वे कम्युनिकेशन किया जा सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजिकल यूजेज ऑफ द स्टूडेंट्स। नटशेल में कुछ और वर्चुअल लैब्स की जो क्वालिटीज हैं उन पे हम बात कर लेते हैं। इज द इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोसेस, कंटेंट एट वन प्लेस। मैंने पहले भी कहा कि थ्योरी, पीडीएफ, प्रैक्टिकल्स, एनिमेशंस, वीडियोस, ये सब एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर उपलब्ध होता है। ऑन डिमांड लैब है, लर्न एट ऑन पेस, सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं हम प्री और पोस्ट लैब क्विज के साथ। एनिमेशंस और वीडियो ट्यूटोरियल्स उपलब्ध हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स, यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ कैन एक्सपेरिमेंट विथ एक्सपेरिमेंट्स, आप एक एक्सपेरिमेंट के साथ भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो ये दैट्स द ब्यूटी ऑफ द वर्चुअल लैब। वन इज सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ द वर्चुअल लैब। तो सोशल इम्पैक्ट इसलिए जरूरी है कि हमारा जो हायर एजुकेशन है वो रूरल बैकग्राउंड से लेकर सिटी तक है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ह्यूमन रिसोर्सेज, फैकल्टी नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, लैब्स नहीं है। वहां पर सोशल इम्पैक्ट्स इसके बहुत ही पॉजिटिव हैं। देखिए आप, शेयरिंग ऑफ द लैब रिसोर्सेज, कनेक्टिंग रूरल एंड रिमोट इंस्टीट्यूशंस, पैराडिग्म शिफ्ट इन आईसीटी बेस्ड। इन फ्यूचर जैसा आईसीटी हमारे लर्निंग प्रोसेस में आता जा रहा है, प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ द नॉलेज एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल लैब। एज ए टीचर मैं वर्चुअल लैब को क्यों सेलेक्ट करूं, ये प्रश्न फिर हमारे दिमाग में आता है। तो यहां पर आप देखिए कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके लिए कितने चैलेंजेस हैं। देयर आर 7 चैलेंजेस आई हैव यूज्ड इन दिस लेक्चर। लिमिटेड लैब एक्सेस, इस ग्राउंड ट्रूथ है कि जितने हमारे पास स्टूडेंट्स रजिस्टर हैं, टीचर स्टूडेंट रेशियो इज नॉट मैच्ड एज पर द नॉर्म्स। एक टीचर ऑलमोस्ट 250 और 300 स्टूडेंट्स के साथ रजिस्टर्ड है, उसका रेशियो आ रहा है। और इतने सारे हमारे पास स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स नहीं है। प्लेन टेबल सर्वे या अन्य फील्ड एक्सरसाइज जब हम कराते हैं तो आप देखते हैं कि एक टेबल के ऊपर 30 से 40-50 बच्चे होते हैं। तो लर्निंग प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं है एज पर नॉर्म्स। और दूसरा, इस तरीके की जो पेंडेमिक सिचुएशंस आई है हमारे सामने, उस समय हम इस तरीके की जो हमारी लैब्स हैं उनको बच्चों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो वर्चुअल लैब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां रियल वर्ल्ड की तरह वो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेकंड चैलेंज इज लिमिटेड टाइम इन द लैब। यस, नंबर ऑफ बैचेस आर देयर, ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है। स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर रहता है 1 से 1.5 घंटे के अंदर एक एक्सरसाइज को करने का। स्टूडेंट एक्सरसाइज में अटेंशन से ज्यादा उसको फ्री करने के बारे में सोचता है, और जस्ट लेटिंग लर्निंग द एक्सपेरिमेंट टू जस्ट गेटिंग इट डन, कैसे भी कंप्लीट हो जाए, ऐसा फील्ड में उसके साथ होता है। बट इन केस ऑफ वर्चुअल लैब बिल्कुल हैंडी है, मोबाइल के साथ भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कभी भी आप कर सकते हैं। तो देयर इज नो टाइम लिमिट इन केस ऑफ वर्चुअल लैब। लो स्टूडेंट मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट्स, क्लासरूम विथ ए पैसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में बहुत ही मैथमेटिकल एक्सरसाइज है कोर्स में, इतना पेस बच्चों का नहीं है कि एक ही क्लास में वो अपने टॉपिक को समझ पाए। तो ऐसे में लो स्टूडेंट मोटिवेशन रहता है, बच्चे क्लास में नहीं समझ पाते हैं। बट इन केस ऑफ वर्चुअल लैब आपके पास रीटेक्स करने के चांसेज होते हैं। आप जैसा आपका लर्निंग प्रोसेस है उसके साथ आप कोलैबोरेट करके टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फॉर मोटिवेशनल वर्चुअल लैब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टीचिंग कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, यस इट्स आल्सो ट्रू
for statistical or mathematical exercises like prismatic compass, correction of bearings. बड़ा टिपिकल सा हो जाता है आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए उसको समझना और उसको ग्राउंड पर लाना. ऐसे में जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को सरल करने के लिए, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम वर्चुअल लैब का यूज कर सकते हैं. मेकिंग मिस्टेक्स इन हाई रिस्क एनवायरनमेंट लाइक इन केमिस्ट्री और इन फिजिकल साइंस, ये सब प्रॉब्लम्स आती है. बट इन केस ऑफ वर्चुअल लैब, बिफोर एंटरिंग इन द रियल लैब और फिजिकल लैब, you have to completed your pre-lab exercise with the virtuality. तो आपके लिए वहां पर काम करना आसान होगा और क्या रिस्क आपके लिए डेवलप हो सकती है उसकी जानकारी आपको मिलेगी. सेम इन द केस ऑफ बायोलॉजी लैब, बहुत सारे एथिक्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनमें एनिमल राइट्स और उसकी वजह से एक्सरसाइज हम नहीं कर पाते हैं, उतने स्पेसिमेंस अवेलेबल नहीं हो पाते हैं. तो वहां पर वर्चुअल लैब स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए फ्रूटफुल हो सकती है. अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स एंड नॉलेज गैप, यस इट्स ट्रू. हमारा सिलेबस अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग है. सिलेबस के जो गैप्स हैं, नॉलेज का जो गैप है, वो भी एक प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट करता है. तो बिफोर एंटरिंग इन द क्लास, यदि वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर कुछ प्रैक्टिकल्स उपलब्ध होंगे तो स्टूडेंट्स उनको कंप्लीट करके अपने इस नॉलेज गैप को समाप्त कर पाएगा और वो रियल फिजिकल लैब में जब आएगा तो प्रिपेयर रहेगा कि उसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी एक्सरसाइज को कैसे कैरी आउट करना है. तो यहाँ पर कुछ तरीके हैं जिनके आधार पर हम वर्चुअल लैब्स का यूज कर सकते हैं. एक बहुत ही फेमस पर्सन ने एक बात लिखी है कि इट इज ए कॉमन बिलीफ दैट वर्चुअल लैब सिंपली सर्व द पर्पज ऑफ रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल लैब्स और इवन रिप्लेसिंग द टीचिंग ऑफ कोर्स कंटेंट, जो कि हमारे दिमाग में भी है. बट दिस इज नॉट ट्रू. वो कहना चाहते हैं कि वी हैव बीन एबल टू यूज वर्चुअल लैब्स टू एनहांस द टीचिंग कंपोनेंट ऑफ द कोर्स. इट नॉट द सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट नहीं कर रहा है, ये टीचिंग एनहांसमेंट के लिए यूज किया जा सकता है. टीच कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स इन वर्चुअल लैब. लैब कंपोनेंट्स हैं हमारे, उनको यूज करने के लिए भी काम आता है. एज पर प्री लैब एक्सरसाइज वी हैव टू यूज वर्चुअल लैब टू रिफ्रेश स्टूडेंट नॉलेज बिफोर टीचिंग न्यू मटेरियल, टू फैसिलिटेट ऑनलाइन लर्निंग. एज ए पोस्ट लैब एक्सरसाइज हम वर्चुअल लैब को यूज कर सकते हैं. एज ए टीचर आपको क्या करना है? देयर आर 4 स्टेप्स. 1, प्लानिंग. सबसे पहले आप प्लान कीजिए कि किस तरीके से एज पर योर सिलेबस आपके टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं जिनको वर्चुअल ग्राउंड पर लाया जा सकता है. देन प्रिपरेशन, प्लेटफॉर्म्स टू यूज फॉर प्रिपरेशन एंड सेलेक्ट द मेथड. थर्ड वन इज प्रेजेंटेशन. लीड योर स्टूडेंट टू द सिमुलेशंस इन देयर कोर्स. यूज योर टीचर्स डैशबोर्ड. और fourth one is review. How do it go? Look at scores, engagements, student feedbacks, check faculty resources page to see new simulations and plan. क्योंकि आज ये टॉपिक बहुत नया है तो सबसे पहले आज हमारा सबसे पहले किसी भी टॉपिक के लिए पर्पस, कोई भी एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आप सर्च कीजिए ऑनलाइन, देन एसेस कीजिए, देन डाउनलोड कीजिए. जब आप ये कर पाएंगे देन इन फ्यूचर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑनलाइन आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं वर्चुअल प्रैक्टिकल एक्सरसाइज डेवलप करने के लिए. तो यहाँ पर कुछ साइलेंट फीचर्स के साथ इस टॉपिक को हम समाप्त करने जा रहे हैं कि एनी टाइम एनीवेयर इन लैब, वर्चुअल लैब आर फ्री टू यूज, accessible through internet on any PC or laptop, even in on your smartphone and tablets. Development in self-learning mode. Yes, innovation experimentations fulfill the same aim and objectives. As a teacher और instructor, visual labs के लिए virtual lab के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले understand the concept of the virtual lab. Syllabus mapping कर लें हम लोग. Take a learner to the intended experiments.
इफेक्टिव यूज और क्रिएट द इंटरेस्ट अमंग द लर्नर्स। ये हमें एज ए इंस्ट्रक्टर करने की आवश्यकता होगी। ये MHRD ने 2014 में वर्चुअल लैब्स के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था और IIT रुड़की का ये एक वेब पेज है जिसमें सिविल इंजीनियर्स में सर्विंग लैब का एक एक्सपेरिमेंट स्टडी ऑफ प्लेन टेबल एंड एक्सेसरीज मैंने यहाँ आपके सामने रखा है। बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। आप जब इस साइट के ऊपर जाएंगे, सबसे पहले वर्चुअल लैब का आप टाइप करेंगे तो सबसे पहले यही वाली वेबसाइट आपको मिलेगी। यहाँ आप देखिए इंट्रोडक्शन, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, सिमुलेशंस, 3D में आपको पूरा टेबल, उसके पार्ट्स रोटेट करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद प्री एंड पोस्ट क्विज एक्सरसाइज वहाँ अवेलेबल है। इसके बाद स्टूडेंट्स के लिए फीडबैक फॉर्म भी है। तो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द NAAC यदि आप देखते हैं तो ये सब चीजें हमारे लिए वैसे भी बहुत ही फ्रूटफुल है। आप इस एक्सरसाइज से इस वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट जो है वो है IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, रुड़की, IIT गुवाहाटी, अमृता यूनिवर्सिटी, IIT हैदराबाद, दयालबाग, NIT कर्नाटका और COE पुणे एंड मेनी मोर IITs. Is the collaboration between the different IITs and institutions. हायर एजुकेशन राजस्थान में भी इस प्रकार कोलैबोरेट करके कुछ लैब्स को हम जोड़ सकते हैं और वर्चुअल प्रैक्टिकल्स क्रिएट किए जा सकते हैं। एक एक्सरसाइज मैंने यहाँ पर वर्चुअल लैब के ऊपर एक एग्जांपल आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ कि किस तरीके से वर्चुअल लैब के ऊपर प्रैक्टिकल्स इजी गोइंग हो सकता है। ये क्लोज ट्रैवर्स मेथड को वर्चुअल लैबोरेटरी के ऊपर समझाया गया है। केवल 8 मिनट्स का वीडियो है। आप देखिए कितना यूजर फ्रेंडली है। प्री लैब एक्सरसाइज के रूप में यदि इसको बच्चों के साथ शेयर किया जाए और उसके बाद फिजिकल लैब में आप 1 या 2 क्लास के अंदर इस टॉपिक को बच्चों को बहुत अच्छे तरह समझा सकते हैं। जब हम करेक्शन ऑफ हियरिंग करते हैं तो रियली हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में उनको बड़ी दिक्कतें आती हैं। देखिए कितना यूजर फ्रेंडली तरीके से वीडियो इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे डेवलप किया गया है। जब हम करेक्शन ऑफ बियरिंग पढ़ाते हैं तो आप देखिए कि बच्चे कितना ट्रबल में रहते हैं और ये एक्सरसाइज कम से कम 2 या 3 क्लासेस में जाकर हम कंप्लीट कर पाते हैं। इसी एक्सरसाइज को हमने 8 से 10 मिनट के इस वीडियो में कंप्लीट किया है। तो आई थिंक इस लेक्चर के बाद आप मेरे जो युवा साथी हैं वो वर्चुअल लैब के बारे में सर्च करेंगे इंटरनेट के ऊपर। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि इट्स नॉट रियल बट नॉट लेस देन रियल। Thank you so much. Thank you very much for a very insightful deliberation.